Good morning, students. I hope you are all fine. I, Bhavna Makwan, welcome you to Devasya International Educational Program. And today we are going to learn a junction lesson, lesson number 4. And the name of the lesson is A Little Fish Story. Textbook you can all open to page number 38. The name of the lesson is A Little Fish Story. Now, can you see the picture over here? A little fish is there. A little small fish is there. See here, you can see in this picture that some fishes are caught in a net. If you turn to page number 39, you can see that this fish is looking happy. She is smiling. This is also a little fish. So now, in this lesson, we will see how this fish is small, what happens when she's caught in the net, and in this picture we will see why she is happy. Now I will explain to you the entire story. First of all, we will read sentence by sentence and then I will explain to you. You all pay attention as I read page number 38. A Little Fish Story. There are a great many million fish in the sea, but this story is about just one of them, and a very small one at that. So now in the seas we can see many fishes are always there. Some are small, some are big, some fishes we eat also, some we don't eat. So this story is about a small one, a small fish. Now this little fish has everything in the sea to make him contented, but he was not happy. Now in the sea, this fish has everything, but still he is not happy. Contented means what? He is not satisfied. उसको सब तरीके से खुश नहीं है वो. उसको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ कमी है. You will laugh when I tell you why he is not. आपको शायद हंसी आएगी अगर मैं कहूँ कि वो दुखी है, वो खुश नहीं है. He was unhappy because he was so very small. वो इसके लिए दुखी है क्योंकि वो छोटा है. और वो छोटा है इसके लिए वो बहुत ही दुखी है. It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say. वो फिश कहता है कि इतना छोटा होना कितनी मुश्किल की बात है. कितनी दुखी हो जाते हैं वो फिश जो छोटे होते हैं. He would say over and over again. बार बार वो यही बात कहता कि कितना मुश्किल है छोटा होना. Little mite यानी कि छोटा होना. Small, छोटा. If I were only larger, how much happier I would be. वो कहता अगर मैं थोड़ा सा ही बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता. And he said that it so many times that I think he believed it. And he said it so many times that I think he believed it. मतलब कितनी बार वो दिन में ऐसे ही सोचता रहता और उसको भी खुद सोचने में मजबूर हो जाता कि काश मैं बड़ा होता. वो दुखी हो जाता क्योंकि वो छोटा है. One day he was swimming along with the rest of the school and thinking, no doubt how much more the larger fish had to be thankful for then when suddenly with no warning they found around themselves in the meshes of a great net. एक दिन सब लोग स्विमिंग कर रहे थे नदी के अंदर, सी के अंदर. स्कूल मतलब रेस्ट ऑफ द स्कूल मतलब जो एक साथ बहुत सारे फिशेस होती है ना, तो स्कूल ऑफ फिशेस कहते हैं. तो सब लोग एक साथ स्विमिंग कर रहे थे. बड़ी मछलियाँ भी थी और बड़ी मछलियाँ थैंकफुल थी कि उन लोग बड़ी है. पर एक दिन अचानक से क्या हो गया, कुछ वार्निंग बिगर किसी को पता ना चला, कुछ किसी को पहले किसी ने बोला नहीं. अचानक सब लोग एक साथ बड़े से जाल में फंस गए. इन द मेस ऑफ ग्रेट नेट. बहुत ही बड़ी नेट के अंदर फंस गए. देखो ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कैसे सब बड़ी बड़ी मछलियां इसके अंदर फंस गई है.
दे वर मच फाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग, मतलब ऐसे तड़प रहे थे, अपने आप को ऐसे बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे. एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट, पूरी नेट फिर से भर गई थी और पानी में से बाहर आ रही थी और धूप भी आ रही थी. एंड जस्ट एज इट वॉज ऑल वॉज बीइंग emptied into the boat, तो पूरी जो मछलियां हैं उन लोग को तड़प रही थी उन लोग, और पूरा सनलाइट आ रहा था और उन लोग को बोट से बाहर निकाला जा रहा था. देखो ये पिक्चर में दिख रहा है सबको. फिर देखो सब बोट में से सब मछलियों को खाली एम्प्टी कर रहे थे बोट से. द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water. How good it felt. पर जो छोटी छोटी मछलियां थी ना, वो ये बड़े से जाल में से, देखो जाल में से दिख रहा है कि जगह थी, तो जो छोटी छोटी मछलियां थी ना वो छोटी थी, इसकी वजह से वो ये जाल में से बाहर निकल आ सकती थी. ये जो बड़ी बड़ी मछलियां थी वो इसमें फंस गई, पर जो छोटी छोटी मछलियां थी वो फटाफट ये जाल में से बाहर निकल गई. और वो कहाँ चली गई? बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर. स्लिप हो गई वो छोटी, फटाफट फटाफट फिसल के लिपस कर का पानी के अंदर वापस चल गई. हाउ गुड इट फेल्ट. उन लोग को बाहर निकल गए तो कितनी खुशी उनको महसूस हुई. He swam there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. तब जब सब मछलियां देख रही थी और सब पहचानती थी कि ये जो फिश थी वो हमेशा बोलता था कि मैं छोटी हूँ, मैं छोटी हूँ, और दुखी दुखी रहता था. पर आज क्योंकि वो छोटा है, वो जाली में से निकल गया और बच गया, तो कितना खुश था वो. और उसके बाद कभी भी दूसरी मछलियों ने उसको सुनते हुए बोलते हुए ऐसा सुना ही नहीं कि मैं छोटी हूँ, मैं छोटी हूँ. वो खुश था क्योंकि वो छोटा था, इसके लिए वो बच गया. और सब मछलियाँ कभी भी उससे ये बात फिर से कभी नहीं सुनी उन्होंने कि उन लोग कि वो छोटा है, वो छोटा है. तो देखिए ये स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है स्टूडेंट्स, कि कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो भगवान ने हमें बनाया है तो वो अच्छा नहीं है. ये फिश हमेशा ऐसे ही सोचता था कि वो छोटा है, तो वो दुखी दुखी रहता था, हमेशा अनहैप्पी. पर वो छोटा था, इसके लिए जब ये बड़ी मछलियों के साथ फंस गया तो वो छोटा था, इसके लिए वो बाहर निकल के अपने आप को बचा सका. और उसके बाद देखो ये पिक्चर में बताया है कि वो कितना खुश है कि वो छोटा है, इसके लिए वो बच गया, वरना ये बड़ी मछलियों के साथ वो भी मारा जाता है ना. तो कैसी लगी स्टोरी बच्चों? अच्छी है ना? चलो घर में होमवर्क के लिए आप लोग ये स्टोरी को अच्छे से एक बार रीड करना, ठीक है? मैं फिर से आपको ये स्टोरी एक बार रीड करके बताती हूँ. A little fish story. There are great many million fish in the sea, but this story is about just one of them, a very small one at that. ये fish बहुत ही छोटी है. Now this little fish has everything in the sea to make him content, but he is not happy. ये fish के लिए है ना, नदी के अंदर सब कुछ है, उसको खाने पीने के लिए सब कुछ है, पर फिर भी वो खुश नहीं है, वो दुखी है, वो कंटेंट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो छोटा है. बिकॉज ही इज स्मॉल. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी अ लिटिल माइट ऑफ फिश. वो हमेशा सभी को कहता रहता कि मैं छोटा हूँ, छोटा हूँ, और वो कभी भी खुशी नहीं रहता था. और हमेशा वो यही सोचता रहता था कि क्यों मेरे को, मैं छोटा हूँ, क्यों मैं ऐसा छोटा हूँ. पर जब ये फिश मछलियाँ जब फंस गई तभी वो छोटा था, इसके लिए वो बच गया, तो वो खुश हो गया था. तो देखो आगे हम पढ़ते हैं. One day he was swimming along with the rest of the school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful. For then he went suddenly with no warning. They found themselves in the meshes of great sea. पर जो बड़ी मछलियाँ थी ना वो तो दुखी दुखी हो गई क्योंकि वो बड़ी थी, इसके लिए फंस गई. तो उन लोग तो थैंकफुल थी ही नहीं.
पर ये छोटा फिश था, वो कितना थैंकफुल हो सकता है कि वो बच गया, कितना उसको खुशी मिली होगी। There were much foundering and splashing as the net was drawn up into the water and the sunlight, and just as it was hauled was being emptied into the boat. तो सभी ये जो नेट फिशेस से भरी हुई है, फटाफट पानी में से बाहर निकाल दिया पूरे नेट को। सनलाइट आ रही थी उनके ऊपर और बोट में से पूरा खाली कर दिया। पर देखो आगे क्या बताया है, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled through the mesh and slipped back into the clear cold water. How good it felt. पर तो छोटी छोटी जो मछलियाँ थी वो फटाफट लिपस कर ठंडे पानी के अंदर वापस चली जाती है। कितनी खुश होगी कि वो सब बच गई। और ये फिश भी देखो कितना खुश है, स्माइल कर रहा है क्योंकि वो बच गया है। He swam here and there and everywhere. सब जगह वो स्विमिंग कर रहा था। With some of the fish who knew him well at the rest of his life. दूसरी सारी फिशेस जो उसको जानती थी, कि उसने कभी नहीं कहा उसके बाद कि काश मैं छोटा रहता, काश मैं बड़ा हो जाता, कभी भी उसने ऐसा बोला ही नहीं। फिर वो खुश था कि वो छोटा है और हमेशा उसने अभी खुशी बरकरार करी रखी और हमेशा वो खुशी रहता था। उसको अभी कोई दुख नहीं था कि वो छोटा था, वो खुश था कि वो छोटा है, इसके लिए वो बच गया। तो हमें भी यही सीखने मिलता है स्टूडेंट्स कि वी ऑल्सो हैव टू बी सेटिस्फाइड। हमें भी खुश रहना है, हम जैसे भी हैं हमें खुश रहना है। क्लियर है ये स्टोरी? फिर देखो न्यू वर्ड्स के अंदर है मिलियन, फाउंड्रिंग, meshes, howl, contented, splashing, emptied, wriggled, warning. देखो मैं स्पेलिंग रीड करती हूँ एक बार। MILLION FLOUNDERING MESHES HAUL CONTENTED SPLASHING EMTPTIED WRIGGLED WARNING. Million, foundering, meshes, howl, contented, splashing, emptied, wriggle, warning. तो ये था हमारा लेसन। अभी स्टूडेंट्स इसके अंदर देखिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी है जिसकी PDF मैं आपको भेजूंगी, ठीक है। तब तक होमवर्क के लिए आप क्या करोगे पता है, ये जो सॉन्ग है ना यहाँ पे दिया है पेज नंबर 43 पे, वो रीड करना और एक बार ये स्टोरी जो है ना वो अच्छे से रीड करना। ओके स्टूडेंट्स, तो होमवर्क में ये रीड करना एक बार, ठीक है। थैंक यू। अच्छे से अपना ध्यान रखना, ओके। और इंग्लिश का जो लेसन है, जो PDF से, वो कंटिन्यू स्टडी करना, लर्न करना। ओके स्टूडेंट्स, बाय।